Hi, a video after a long time, and today I wanted to talk about how I went about applying to colleges after boards. After boards का मतलब boards तो हुए ही नहीं, but after school. So I will start with different colleges जिसमें मैंने apply किया था with various subject combinations. Basically, I'll go about it in a merit demerit basis जहाँ पे I'll try to nugget one college against the other and then tell you guys कि how I went about choosing the one which I chose. तो फिर as you can see right here, I am now in Hindu college, so it will be interesting to know ki how I reached there. Okay, so how do we begin? I think the popular notion is that apply to as many colleges as you can. But मेरा notion अलग था. मेरा मानना था कि I wouldn't apply to a college I'm not 100% sure about attending. So I only went on applying to a very few number of selected colleges basically because सबकी popular choice होती है कुछ कुछ कॉलेज जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंड ऑल ऑफ दैट बट मेरे को बैंगलोर जाना नहीं था और क्राइस्ट के दिल्ली कैंपस से मेरे को बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिल नहीं रहा था उनके पास होता नहीं है बेसिकली मिल नहीं रहा था क्या मतलब तो फिर आई थिंक सबसे पहले आई वॉज वेरी फाइन विद गोइंग टू दिल्ली और मुंबई तो आई थिंक ये मेरे प्राइम डेस्टिनेशंस थे then comes in the first college which I had applied to which was St. Xavier's Mumbai and इसमें I filled out the application and they have a very basic procedure of admission they demand you to clear their cutoff and इसमें I had chosen the like the first preference जो था मेरे combinations का वो था of political science English plus French but sadly when the cutoff came out I couldn't clear it the cutoff was a skyrocketing 99.17 and I wasn't from the Maharashtra board so no advantages there so it was a hard pass for St. Xavier's and उसके अलावा I was also in the loop for the admission process of Ashoka University तो मैंने फोर्थ राउंड में अप्लाई किया था बेसिकली ये मानना होता है कि मतलब अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल मतलब फर्स्ट या सेकंड राउंड तक आपको अप्लाई कर देना चाहिए इफ़ यू आर मतलब इफ़ यू आर सेट इन योर हेड टू गो देयर बट आई डोंट नो मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं बिकॉज मतलब बाकी के दो राउंड्स रखे क्यों हैं थर्ड और फोर्थ और अगर आपका होना होगा तो बाद में भी हो जाएगा सो दैट डजेंट रियली चेंज एनीथिंग तो अशोका में आई वॉज बेसिकली ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स इट बाय लुकिंग एट देयर इंस्टाग्राम एड जिसमें दे हैड मैंशन कि secure your admission in one of the best colleges without your board score so that was particularly interesting क्योंकि उस टाइम जिस तरह का chaos और confusion चल रहा था boards के regarding तो कोई भी बच्चा I think would have been insecure and would have applied then I think अभी आजकल जो उनका ad float कर रहा है उसमें they have slightly changed this इसमें they have also added secure your admission without board marks and without CUCT so कहीं ना कहीं मोर और लेस इम्प्लिसिटली दे आर मतलब प्रोवाइडिंग दैट ऑल्टरनेटिव अगेंस्ट डी यू चाहे वो कोई माने या ना माने एंड दे आर बेसिकली काउंटरिंग इट सो अशोका का एडमिशन प्रोसेस इज बेसिकली divided into three stages if I'm not wrong they first ask you to fill out an application very comprehensive application by the way the colleges in abroad basically judge you based on your application so this is the same model which Ashoka has adopted since they are a liberal arts university so I think if one of you I can't share my application it has personal stuff so I had applied in the fourth round as I stated earlier so they have an application round an aptitude test followed by an interview and if any one of you would like to check that interview out I actually have written an answer on Quora and I will link it below if any one of you is interested I think it already has a huge number like a good number of views so I did make it I made the cut for Ashoka I was also there for approximately 1 or 1.5 months but I think second month में I lost interest और फिर DU का admission भी पास आ रहा था तो I stopped attending classes and all and eventually I withdrew my admission you might ask कि withdraw कैसे कर लिया मतलब then why did you even go there so I was lucky that in COVID times basically the UGC had come up with this policy कि 31st अक्टूबर से पहले पहले जो जो अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेता है दे विल एक्चुअली एंड अप गेटिंग 100% रिफंड विच आई ऑल्सो डिड गेट सो वॉट मेड मी लूज इंटरेस्ट इन अशोका इफ़ यू माइट आस्क तो इसके लिए अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल सो आई थिंक वी कैन गो ओवर द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स so let us now discuss why I chose Hindu College over Ashoka University. Okay, so beginning with the first demerit, I think सबसे बड़ा कौन तो यही है कि the cost of being there. Although I actually ended up getting a financial aid of
अ फुल ब्लोन 100%, बट वो 100% होता नहीं है, उसमें 100% ट्यूशन फ़ी का एड था, लेकिन आई थिंक रेजिडेंस का 50% और मेस के खाने के लिए आई वुड हैव हैड टू पे। तो कहीं ना कहीं मेरे को वो बराबर ही पड़ रहा था हिंदू के, और अगर हिंदू का मैं ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल मिक्स करता और अशोका का जितना मैंने आपको भी बताया, तो वो मेरे को बराबर बराबर ही पड़ रहा था। सो आई थिंक कॉस्ट मेरे लिए वहाँ पे एक मतलब न्यूट्रलाइज्ड फैक्टर हो गई थी। ऑल्दो अभी हिंदू का हॉस्टल बंद पड़ा है, ओनली ट्यूशन फीस इज टेकन फ्रॉम अस, तो आई थिंक आई एम एट अ मोर पॉकेट फ्रेंडली प्लेस। देन कम्स द पॉइंट ऑफ ट्रैश क्राउड। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आई थिंक पीपल whom आई वॉज विद दे वर एक्चुअली नाइस, बट some people also allege कि the crowd that comes to Ashoka, मतलब I had a friend who had a friend from Ashoka, so they told her कि the crowd here is like 75% trash and 25% of them are actually ambitious. So that person would regret being at Ashoka on some nights, and on the other nights, he would feel or she would feel like that is the best place that they could have been at. So I think वो आई थिंक पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इन टू प्ले। Another demerit would be safety concerns, because I had this friend who was basically from the same school but not the same branch, and we both received the offer of admission. And we used to chat and basically rant about going or not going to Ashoka. So this friend of mine actually did not accept her firm offer because her parents were actually firm about not sending her there, क्योंकि it is like in Sonipat in the middle of nowhere. तो वहाँ पे actually there have been like cases of sexual harassment and all. Then another demerit would be the liberal structure not being so liberal after all. Now, Ashoka boasts about being a liberal arts university, but once I was actually there, I actually realized that liberal setup is not so liberal after all, because if I am sure about studying political science, why would I need to complete like 9 or 12 various different foundation courses, ranging from history to literature to science to quantitative aptitude, which I absolutely hate. So why do I need to do that? So I think हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्रिब करते हैं about liberal structureless, but actually being at Ashoka made me realize that I yearned for that structure. I think I longed for that structure क्योंकि I was not able to cope up really well with that liberal setup. एंड उसके अलावा एक और चीज़ विच गेट्स इन टू अकाउंट इज़ द रिगरस अकेडमिक सेटअप और द रिगरस अकेडमिक इन्वायरमेंट, बिकॉज अशोका में मतलब नाउ बीइंग एट ड्यू एंड देन लुकिंग बैक एट अशोका आई कैन सी दैट वहाँ पे वी लिटरली यूज टू गेट वीकली असाइनमेंट्स। और मेरे पास मतलब 4 फाउंडेशन कोर्सेज थे बेसिकली। फर्स्ट ईयर में दे मेक यू डू ओनली द फाउंडेशनल कोर्सेज, वो सारे करने होते हैं, 9 होते हैं या 12 होते हैं, आई एम फॉरगेटिंग। वहाँ पे दे यूज टू गिव अस लाइक वीकली असाइनमेंट्स हर हर सब्जेक्ट में, और लाइक आई हैड 4 सब्जेक्ट्स, तो मेरे 4 दिन तो असाइनमेंट सबमिशन के दिन ही होते थे। तो आई हैड लाइक आई थिंक आई हैड एक हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट, इंडियन सिविलाइजेशन, देन आई हैड लिटरेचर एंड द वर्ल्ड, एंड देन आई हैड two courses from the same subject, that is EPS, Economics, Politics and Society. One of the EPS talked about development and the second EPS was about Anthropocene. Again, taking a dib at the liberal setup, I think it is not so liberal again, because to actually get into your preferred course, आपको basically you have to depend on a first come first serve basis. So how is this setup liberal मतलब in any way? Because a first come first serve basis means that you have to stand in a never ending waiting list whilst being stuck with a course which you don't really like for the like entire semester. सो बेसिकली हमें एक डेट दे दी जाती थी कि मतलब इस डे से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। सो मतलब मंडे को 9 बजे यू हैव टू लाइक वेक अप एंड ओपन योर लैपटॉप उस पोर्टल पे साइन इन करके कोर्स के लिए फिल करने के लिए। एंड इफ़ यू लाइक डोंट मेक इट इन टाइम यू विल बी लाइक वेट लिस्टेड विद 100+ स्टूडेंट्स। जबकि इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस एट डी यू आई हैव सीन कि मतलब इस साल सबको पता है कि ओवर एडमिशन्स भी हुए हैं, एंड मतलब अगर कोई जी सिलेक्ट करना है हमें जेनरिक इलेक्टिव, जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा बच्चों को अकोमोडेट किया जाता है विदाउट टेलिंग एनी वन अ नो। जैसे आई थिंक मेरे कोर्स में 50 सीटों पे देर इज़ लाइक 190-195 एडमिशन्स, तो डी यू नेवर नेवर डिनाइड एनी वन। आई थिंक चाहे वो 2 सेक्शन बना लेंगे, टीचर्स पे लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी को।
सो अशोका में इट वॉज लाइक कि आपको मतलब वेट लिस्ट होगा तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर, वरना यू कैन कीप वेटिंग इन द वेटिंग लिस्ट। कोर्स डिसाइड करने में एवरीथिंग कम्स इन टू प्ले, क्योंकि कभी कभार आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं मिलता है, कभी कभार आपको नाम से वो सब्जेक्ट सुंदर लग रहा होता है, लेकिन फिर जब मिलता है तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली इसका कंटेंट बोरिंग है, इसके प्रोफेसर अच्छे नहीं है, देन यू वुड वांट टू स्विच। तो एक हफ्ता उसमें ऐसा भी होता है, पता नहीं उसको कौन सा वीक बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जहाँ पे मतलब उसको शायद फ्लोटिंग वीक ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स कैन लाइक स्विच ओवर एंड प्ले अराउंड विद कॉम्बिनेशंस। लास्ट में आपके पास 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, आई नो, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है तो मतलब यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। जबकि ड्यू में ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक बेसिकली आपको एक सिर्फ जी सिलेक्ट करने के लिए और ए सी सिलेक्ट करने के लिए, ए सी सी भी सिलेक्टेड ही होता है, जी सिलेक्ट करने के लिए आपको बस एक फॉर्म पे फिल करना होता है। सो इट बिकम्स वेरी ईजी। आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट द सिस्टम बीइंग वेरी रिगरस, जबकि डी यू में ऐसा है कि यू हैव टू लाइक study just before the exams and you'll fare well with like good marks. Ashoka demands real academic caliber for you to be able to do anything. And also, by the way, fun fact, कि if you actually get stuck with a foundational course that you don't like, for example quantitative aptitude in my case, although जहाँ जब तक भी मैं वहाँ पे था मैंने पढ़ा नहीं वो, तो these grades would actually count into making up your CGPA. So how depressing is that? Another disadvantage would be, which can also turn out to be an advantage at Ashoka, is that everything depends on the teacher. Since कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है नहीं, सो एक्चुअली जब उनका ओरिएंटेशन वीक चल रहा था तो मुझे एक बात बड़ी फनी लग रही थी कि जब भी कोई कुछ पूछता है, सो द मतलब पैनलिस्ट्स वुड से कि या फिर द मॉडरेटर्स वुड से इट डिपेंड्स फ्रॉम टीचर टू टीचर, इट डिपेंड्स फ्रॉम द कोर्स टीचर, इट डिपेंड्स ऑन द लाइक इंस्ट्रक्टर। सो ये बात बहुत रिपीटेटिव हो जाती है, क्योंकि मतलब किसी को पता ही नहीं कि कोर्स में क्या होगा, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टीचर विद एक्चुअली curtailing the entire structure of that course, the syllabus, the assignments, the grading and all of that. कभी कभी इसीलिए लोगों को ग्रेडिंग कुछ कोर्सेज की अनफेयर भी लगती है, रिगरस लगती है। तो बट यू कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज एक स्ट्रक्चर से आप भाग के आए हो और फिर आप एक अनफेयर स्ट्रक्चर में फिर से फंस गए, विच इज़ लाइक shaped by a professor. So if the professor is like nice, if the professor is considerate, you'll have the time of your life. But if the professor is clueless about the course, for example मेरा एक कोर्स था, one of the मतलब even the professor was clueless, and I think weeks before the assignment submission the professor was asking us कि मतलब how do you want to be graded. So I think it became a little worrying for the class, for the students, कि we lack a structure in the course. जबकि दूसरे कोर्सेज में हमारे साथ ये था कि देर वॉज लाइक अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, पूरे कोर्स के लिए सारी रीडिंग ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड थी, तो एवरीथिंग वॉज रेस्ट अश्योर्ड। सो ये बहुत है कि टीचर डिपेंडेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ऑल्सो कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग डीमेरिट इज दैट अशोका boasts about renowned professors, but what I noticed there was that these professors are, they perhaps are too busy to take classes, because एक बहुत पॉपुलर प्रोफेसर की हमारे बैच के साथ 2 क्लासें होती थी, मंडे को और वेंसडे को, जिसमें से भी मतलब उनका मंडे वाला लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर होता, एंड समटाइम्स ऑल्सो ही एंडेड अप स्किपिंग द वेडनेसडे पीरियड एज वेल बिकॉज ही वॉज जस्ट बिजी। सो मतलब फिर व्हाट इज़ द होल पॉइंट ऑफ बोस्टिंग अबाउट इट। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मतलब टीचर नहीं है तो टी एफ क्लास ले लेता है। टी एफ इज़ बेसिकली अ टीचिंग फेलो, ये एक कॉन्सेप्ट है जो मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड एंड लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है, कि जहाँ पे एक टीचिंग फेलो होता है जो बेसिकली सब्सटीट्यूट करते हैं और असिस्ट करते हैं द टीचर को हैंडलिंग द क्लास। तो एक बात ये थी कि बहुत ज़्यादा मेरे को लगा कि डिस्कनेक्ट है टीचर और स्टूडेंट के बीच। जैसे डी यू में प्रोफेसर से वन ऑन वन यू कैन आस्क, लेकिन आई थिंक दिस माइट बी पर्टिकुलर टू माई कोर्स, बट द प्रोफेसर वॉज लाइक कि मेरे पास कोई डाउट नहीं आना चाहिए, आस्क एनीथिंग टू योर टी एफ्स और टीचिंग फेलो बेसिकली। सो अगर बहुत ज़रूरी होगा तो द टीचिंग फेलो वुड फिल्टर इट आउट एंड देन द डाउट वुड रीच मी। सो मतलब वॉट इज़ द होल पॉइंट ऑफ इट बीइंग अ बिग डील अबाउट हैविंग दीज फेमस प्रोफेसर्स, जब आपको सब कुछ टी एफ से ही पढ़ना है और टी एफ से ही सीखना है और टी एफ से डाउट्स क्लियर कराने हैं एंड ऑल ऑफ दैट। और आई थिंक ये चीज़ें एक पॉइंट के बाद मैटर करती भी नहीं, बिकॉज कॉलेज में और इवन हायर क्लासेज में यू आर सपोज टू स्टडी ऑन योर ओन। सो वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग रिनाउंड प्रोफेसर्स जब एक्चुअली आपको खुद ही पढ़ना है। हाँ, द रोल ऑफ द टीचर गेट्स अ लिटिल मिनिमल कॉलेज में आके, आई थिंक। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन boasting about renowned professors. Although एक merit would be of being at Ashoka that these renowned professors could actually help you with an LOR. An LOR is a letter of recommendation, because these professors are like alumni of big colleges abroad. So like their LOR could do wonders for you, and it could like directly land you somewhere. So that's a merit. I think another demerit would be constant notifications from the college, from the ग्रुप्स एसोसिएटेड विद कॉलेज। आई थिंक मुझे डी यू में आके इतना ही लगता।
और डी यू में इतना कोई आपको मतलब करता नहीं है। अशोका में एवरीथिंग वॉज वेरी फॉर्मल, मतलब रीडिंग्स हमारे पास ईमेल से आ रही हैं, सब कुछ ईमेल के थ्रू कन्वे हो रहा है। हर 10 मिनट में आई थिंक कुछ ना कुछ ईमेल आता था, कोई इवेंट हो रहा है उसकी ईमेल आ गई। कभी कभार ऐसा होता था कि आपको जीमेल वाला अपना जो था उसके नोटिफिकेशंस म्यूट करने पड़ते थे, बिकॉज इट वाज लाइक वेरी इरिटेटिंग एंड अनोइंग एट टाइम्स। आई थिंक डी में आके ये फेस नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे मेजर ऑफ द कम्युनिकेशन इज कैरिड आउट थ्रू व्हाट्सएप ओनली, और सिर्फ प्रिंसिपल ऑफिस से ईमेल आता है कभी कभी फॉर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स। आई थिंक अशोका में कुछ भी हो, फ्रॉम क्लब्स ऑर्गेनाइजिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, ओरिएंटेशन हो रही है, क्लास की रीडिंग आ रही है, सब कुछ ईमेल से आता था। एंड इवन ऑन व्हाट्सएप, या तो आई एम नॉट श्योर, आई थिंक वो शायद ऑनलाइन फेस था इसलिए एवरीथिंग वॉज लाइक पुश्ड इन टू द ऑनलाइन मोड, बट इट डिड बिकम टैक्सिंग, नॉट टैक्सिंग एग्जैक्टली बट अनोइंग आई थिंक, जो कि डी में आके मुझे इतना फेस नहीं करना पड़ा कि हर 2 मिनट में फ़ोन बस कर रहा है कि कॉलेज की कोई ईमेल आ रही है। डी में भी है टू सम एक्सटेंट वो, लेकिन वो तभी है व्हेन यू लाइक साइन अप फॉर इट, अनलेस यू आर नॉट इन एनी सॉर्ट ऑफ सोसाइटीज़, और सोसाइटीज़ के भी एकदम कोर में जब आपको एक्चुअली सारा काम करना पड़ रहा है। देन सबसे बड़ा डीमेरिट जो आई थिंक विच हेल्प्ड मी ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम अशोका एंड चूज डी यू इज द कैंपस लाइफ। लाइक Hindu College is situated in North Campus, and Ashoka University, on the other hand, is situated in Sonipat in the middle of nowhere. So campus life तो भूल ही जाओ, मतलब वो ही एक जो वो मतलब bounded area है campus, तो the campus life definitely takes a hit. Also Ashoka में I think I read it on Quora or something. You must have as well if you have researched about it, कि जब मतलब इन अ पर्टिकुलर सीजन जब मतलब वो जलाने की बारी आती है हस्क को या फिर जो भी होता है दिस फार्म प्रोड्यूस, तो जब वो मतलब फार्मर्स अपनी फील्ड क्लियर करते हैं तो वो जो भी सारा का सारा वो ऐश वगैरह होता है वो सब अशोका यूनिवर्सिटी के कैंपस के अराउंड फ्लोट करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ बैड पॉइंट, आई मीन इट ऑब्वियसली इज़। Then I think the last demerit would be the presence of societies or the lack of it basically. Actually societies बोलते नहीं है अशोका में, वो क्लब्स बोलते हैं। एंड जब आप कंपेयर करने चलोगे तो डी यू के किसी भी मतलब आई थिंक टायर 1 कॉलेज की, टायर 1 से आई मीन लाइक हिंदू स्टीफेंस एंड एस आर सी सी, और उनकी सोसाइटीज़ लो और अशोका के क्लब्स से कंपेयर करो तो आई डोंट थिंक देयर इज़ इवन अ मैच। The DU societies provide you with much more exposure, and I think it's fair because on Ashoka's part, because it is like fairly new, so it will take some time to establish itself, and the societies will, or the clubs take some more time to establish themselves and become something more. So that was about the demerits. Now talking particularly about the merits, I think सबसे बड़ा merit मेरे लिए यही था कि I got a 100% financial aid. To top that up, I also got like a 100% refund even after studying there for like 1.5 months. आई थिंक अनदर मेरिट वुड बी दैट इट इज़ टू कम्पेटिटिव। अब कुछ लोगों के लिए डी मेरिट भी हो सकता है कि इफ़ यू वांट टू बी लाइक अंधों में काना राजा, लेकिन आई वुड एक्चुअली अप्रिशिएट अ कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट। आई वुड वांट अ क्लासरूम जहाँ पे मतलब मेरे पीयर्स भी आंसर कर रहे हैं, आई एम नॉट द ओनली वन स्पीकिंग, जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ऑब्वियसली फ्रूटफुल डिबेट भी हो रहा है। एंड आई थिंक दैट्स एन एनवायरनमेंट और दैट्स द पीपल आई वुड वांट टू सराउंड माई सेल्फ विद। एक बहुत अच्छा मेरिट ये है कि दे हैव the capacity to offer you a 4-year program. So this 4-year program comes in handy, जो कि actually अब DO भी सोच रहा है according to the NEP under the FYUP जो भी स्कीम है, ये 4-year undergraduate program। तो 4 साल का प्रोग्राम मिलने से आसानी हो जाती है चीज़ें। जिन लोगों को मतलब अब्रॉड अपनी एजुकेशन परस्यू करनी है उनके लिए ईजी हो जाता है, बिकॉज अब्रॉड में मतलब मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन दी US एंड कैनेडा दे बेसिकली आस्क फॉर अ 16-year एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो 12th तक आपके 12 साल हो गए, फिर अंडर ग्रेजुएशन के 3 साल, मतलब जैसे कि कोई भी कन्वेंशनल इंडियन यूनिवर्सिटी देती है तो 13, 14, 15, तो 16वां साल आप कहाँ से लाओगे? तो 4 साल की डिग्री जब आपके पास होती है, तो जब वो 4 साल की डिग्री आपके पास होती है तो थिंग्स बिकम अ लिटिल ईजियर। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करती हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द 3-year डिग्री एंड दे माइट वॉन्ट यू टू डू सम सॉर्ट ऑफ फेलोशिप ऑन कैंपस, या उसके अलग अलग तरीके होते हैं, लेट्स नॉट गेट इन टू दैट। सो थिंग्स बिकम ईजी यहाँ पर। चूज टू परस्यू अ 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड you want to basically study abroad after that as a part of pursuing your masters. I think LOR वाली मेरिट के बारे में मैंने बात कर ही ली है, तो वही पॉइंट है कि इट कैन एक्चुअली डू वंडर्स फॉर यू, और वहाँ भी मतलब आईवी लीग एलुमनस होते हैं, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि वॉट इफ दे पुट इन अ वर्ड फॉर यू, वॉट इट कैन पॉसिबली डू. So another advantage of being at Ashoka University is that you are taken away from the conventional Indian education system. So they basically have this Western
liberal model of studies, which is like in contrast to the CBSE का rote learning वाला जो system है, which actually is still prevailing in DU, unfortunately. So अगर if you are like sick of the same old method of rote learning since school, so Ashoka can offer you a respite, I think. But I think मेरे केस में ये बात थी कि if I was अगर मतलब आई एक्चुअली प्लान ऑन स्टडिंग अब्रॉड, सो अगर मैं वो सिस्टम विटनेस करने ही वाला हूँ इन माई मास्टर्स, सो आई माइट एज वेल गेट अ टेस्ट ऑफ DU एंड देन चूज टू स्टडी इन द लिबरल सेटअप आफ्टरवर्ड्स. ऑल्सो अशोका में यू कैन डू लाइक डबल मेजर्स डबल माइनर्स, तो लिबरल वाला जो मॉडल है वो इस सेंस में हेल्पफुल साबित होता है कि मतलब मल्टीपल कोर्सेज आप ले सकते हो. सो इट पर्टिकुलरली बिकम्स हेल्पफुल फॉर दोस्त जो मतलब साइंस बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनको मतलब ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में कुछ करना है. तो लाइक DU वुड डिडक्ट योर मार्क्स. अभी तक जो सिस्टम चल रहा था कि 2.5 का डिडक्शन होगा, यहाँ पे देयर इज लाइक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रीम्स, कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है. सो दैट रियली बिकम्स हेल्पफुल फॉर समवन जिसने मतलब who did not basically make good life choices at an early stage but is like now coming to their senses. बट दिस मेजर माइनर थिंग ऑल्सो गेट्स वेरी रिगरस, क्योंकि ऑलरेडी इतना रिगरस अकेडमिक सेटअप है वहाँ पे. फिर आप अगर माइनर डिग्री कर रहे हो तो आपको फ्री में नहीं मिलेगी, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. सो काफ़ी सारे बच्चों को रियलाइज़ हो जाता है कि लाइक दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी, और वी माइट जस्ट स्किप ओवर द माइनर, क्योंकि यार नॉर्मल मेजर तो हो नहीं रही अब एक और डिग्री के लिए, you have to like put in an extra effort. So many of them like reconsider their choice. Now after this entire Ashoka versus DU thing, let us talk about St. Stephen's and what basically led me to pick Hindu college over St. Stephen's. So I had applied to St. Stephen's side by side, and the combination which I had applied, or the course which I had applied for, was BA program. I would have went on to pursue BA program with the combination of political science plus English. The sad part is कि Stephens में आपको political science honors नहीं मिलता. If that had been the case, things would have become like crystal clear for me. I think I would have gone to Stephens, but I actually am happy right now at Hindu because it is less like a school. So I had applied to Stephens, I cleared the cutoff, I got the call for interview, which you can like find a like elaborate form of my interview. I had written an answer on Quora, which I can link below in the description. Now, basically, talking about this whole dilemma of choosing Hindu or Stephens, I think this is the classic dilemma of choosing between course and college. तो Stephens में मेरे को BA प्रोग्राम मिल रहा था, और हिंदू में था मेरा मनचाहा मनपसंद कोर्स BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस. सो ऑब्वियसली कोर्स की वजह से मेरे को पता था कि मतलब 60% कि आई विल बी एंडिंग अप एट हिंदू कॉलेज इन सम वे और दी अदर, और सम हाउ और दी अदर. सो बेसिकली यही था कि मैंने सोचा यार कि कोर्स एंड कॉलेज को बैलेंस आउट करने के लिए, लाइक आई एम नॉट गेटिंग political science in some like off campus college, right? No offense to off campus colleges, but Hindu college is literally like the best place to be at if you're studying political science in India at an undergraduate level. So मतलब मेरे को लगा कि it is like a win-win situation for me, best college with the best course combination. So I think I ended up choosing Hindu college over St. Stephen's, and I don't regret anything, neither regretting choice I made for Hindu over Stephens or Hindu over Ashoka University. I am 100% satisfied with my choice, I think, at the end of the day, and that's what matters. Now I can understand that I might face hate from either of the sides, maybe from Ashoka University fans or St. Stephen fans. I would just want to make it clear कि this is like my personal opinion, so I wouldn't encourage any hate. But करना भी तो कर लो, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, because I am here to share my experience, and I think हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस इज वॉट शेप्स देयर ओपिनियंस. इट ought to be different for everyone. So that was it, I think, for my college journey video. So tell me down in the comment section below if you still have any confusions, or if you would want an elaborate response of any of the choices I made or during this entire process. Or if you'd want to simply stay connected, you can follow me on Instagram and maybe ask me your doubts वहाँ पे. I'll link it down in the description as well. And yeah, I hope you learned something. And if still I could help in any way, just feel free to reach out. Toodles.